Jeremías, इसलिए यिर्मयाह से खुदा yo ने te कहा, conocí मैं तुझे जानता हूँ y yo te formé और मैंने तुझे बनाया y yo te di और मैंने तुझे देखा por profeta कि नबी के तौर पे a las naciones. नेशंस के लिए। Y Jeremías dijo, और यिर्मयाह ने कहा, no sé hablar, मुझे तो बोलना ही नहीं आता, yo soy un niño. मैं तो बच्चा हूँ, ¿Cómo vas a usar un niño? मुझे किसका इस्तेमाल करेगा? Tú crees que eres un niño, आप समझते हैं आप एक बच्चे हैं, tú crees que eres un bebé, आप समझते हैं कि आप एक बच्चे हैं, tú vienes con un destino, आप एक डेस्टिनेशन से आते tú हैं, vienes con propósitos आप एक eternos. पॉजिटिविटी से आते हैं जो हमेशा का। Voy a hacer maravillas contigo. मैं आप खुदा कहता मैं जैसा Entonces Dios lo forma, इसके खुदा तैयार करता है, Dios le enseña. खुदा सिखाता है। Jeremías pasa un proceso यिर्मयाह एक प्रोसीजर से गुजरा y no es fácil, और वो आसान नहीं था, pero Dios le dice a Jeremías, मगर खुदा यिर्मयाह से कहता है, ¿te olvidaste lo que te dije? तू भूल गया जो मैंने तुझे कहा था, Clama a mí मुझे पुकार, y yo te voy a responder मैं तुझे जवाब दूंगा, y yo te voy a enseñar. मैं तुझे सिखाऊंगा। Dios está listo para enseñarte खुदा तैयार है आपको सिखाने के lo लिए, que hizo contigo जो आपके साथ करने के antes de la fundación del लिए, mundo. जो कि दुनिया की तकलीफ से पेश करो। Y cuando lo sepas, और जब आप जानेंगे, se te va a quitar la tristeza, वो आपको दुख को हटा देगा se te va a quitar el dolor. और आपकी तकलीफों को, दर्दों को हटा देगा। Y de otra cosa ahí. ठीक। Este es un predicador. La venda será quitada. La ceguera se te va. Hay algo que él tiene que saber. Que el Espíritu Santo conoce todas las lenguas. El Espíritu Santo no tiene problema con las lenguas. जो खुदा का रूह है उसको जुबानों से कोई प्रॉब्लम, कोई मुश्किल नहीं है। Llegó un hombre de Brasil एक ब्राजील से आदमी आया a mi iglesia मेरे चर्च में para predicar. कलाम सुनाने के Y लिए, él no lleva intérprete. और वो इंटरप्रेटर नहीं लाया अपने साथ, Yo estoy ahí और मैं वहाँ पे था, y él va a predicar, और वो कलाम सुनाने pero no tiene intérprete. उसका एक जो ट्रांसलेटर नहीं है, Yo me levanté. और मैं खड़ा हो गया, Yo le dije, voy a ser tu intérprete मैं तेरा तर्जुमा करूंगा। esta noche. आज की रात Tú hablas तू बोल, y yo te voy a interpretar मैं तेरा तर्जुमा करूंगा, lo que tú dices. लोग जो तू बोलेगा। La iglesia sabe और चर्च जानता है que मेरा yo no tengo la lengua de Brasil. कि मैं ब्राजीलियन जुबान नहीं बोलता, Yo no sé hablar nada de eso. मुझे लफ्ज भी नहीं आते Así होते। que ellos me quedan mirando. और वो सब मुझे देखने लगे। ¿Qué le pasa al profeta? आज ये प्रॉफिट को क्या हो गया? Ahora se metió que va a interpretar. आप ये कह रहे हैं कि मैं तर्जुमा करूंगा, वो भी Si él no sabe esa lengua. मगर इसको तो ये जुबान आती नहीं है। Yo le dije al predicador, hable. मैंने वो कलाम सुनाने को बोला बोल आज, Y él comenzó a hablar. और वो शुरू हो गया बोलना, Y yo comencé a interpretarle और मैं शुरू हो गया तर्जुमा करना। todo lo que él decía. जो कुछ भी वो कहता था Yo lo entendía. और मैं समझ रहा था उस दिन, Y él se quedó और वो हैरान हो गया, atónito. वो परेशान हो गया, Él quería saber वो जानना चाहता था cómo yo sabía su idioma. मैं किस तरह उसकी जुबान जानता Así que predicamos, कि मैं कलाम सुना, oramos por los enfermos, मैं बीमारों के लिए दुआ करता, sanamos por los enfermos, मैं बीमारों को शिफा देता, profetizamos हम नबूवत देते y हैं, lo invité a comer. और मुझे खाने के लिए बुलाया। Ahora estamos comiendo अब हम खाना खा रहे हैं y él quiere saber और वो जानना चाह रहा है cómo yo sé su idioma. कि मैं किस तरह उसकी जुबान जानता Y हूं। él me dice a mí, और उसने मुझे कहा, yo dije una cosa मैंने एक अल्फाज बोला y usted dijo la otra. और आपने कुछ और कहा, Y yo le respondí, और मैंने जवाब en la mesa, और मैंने lo que usted dijo fue esto. और जो आपने टेबल पे कहा वो Y ये, yo le contesté esto. और मैंने ये आपको Y yo me कहा। dijo, ¿cómo usted sabe? उसने बोला आपको किस तरह पता है? Al ratito, अभी थोड़ी देर पहले ya yo no sabía su idioma. कि आप मेरी जुबान नहीं जानते थे। Gloria a Dios. Hasta el día de hoy. आज के दिन तक, Pero en el momento, मगर उस वक्त Dios me necesitó खुदा को मेरी जरूरत थी y me dio su idioma. और मुझे खुदा ने उस दिन वो ब्राजीलियन जुबान से उस लम्हे के लिए दे दी। A lo mejor बेशक Dios me formó मुझे खुदा ने तैयार किया, y dentro de mí मेरे अंदर, yo tengo su lengua. कि मैं शायद आपकी भी जुबान जानता हूँ, Porque el que te dio esa lengua क्योंकि जो खुदा ने आपको जुबान दी vive dentro de mí. वो शायद मेरे अंदर भी हो, El que habla inglés कि जो इंग्लिश बोलता है vive dentro de mí. वो मेरे अंदर रहता है, El que habla chino जो चाइनीज बोलता है vive dentro de mí. वो मेरे अंदर रहता है, Él tiene todos los idiomas और खुदा उसके बाद तो सारी जुबानें हैं y él vive dentro de mí. और वो मेरे अंदर रहता Yo है। no tengo ningún problema मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं que el Espíritu Santo कि खुदा का पाकरू me use कि मुझे इस्तेमाल y करे yo entienda tu lengua. और मैं आपकी जुबान समझने लगूं। Este es el tiempo. ये वो वक्त आ गया है, Lo que tú no sabes, जो आप नहीं जानते Dios te lo va a enseñar. वो खुदा आपको Por सिखाएगा। eso yo le digo a Jeremías,
इसलिए खुदा ने यिर्मयाह से कहा, y te enseñaré. मैं तुझे सिखाऊंगा. Tú eres un alumno तू एक बच्चा है de Dios. खुदा का. Dios es tu padre. खुदा तेरा बाप है. Dios es tu maestro. खुदा तेरा उस्ताद है. Dios te ha enseñado cosas खुदा ने तुझे चीजें सिखाई हैं que tú no sabes de ti. कि जो तू नहीं जानता, Pero llegará el momento. मगर वक्त आएगा Eres un tesoro. कि तू एक ट्रेजर है. Eres un tesoro. एक ट्रेजर है. Y cuando Dios comienza a sacar जब खुदा निकालेगा las perlas que hay dentro de ti, जो हीरे जवाहरात तेरे अंदर te है, vas a quedar con la boca abierta. तेरा अपना मुंह खुला रह जाएगा. Vas a entender तू समझेगा que lo que llevas adentro कि जो तू अंदर है es Dios. वो खुदा है. Dios se te metió adentro. वो खुदा तेरे अंदर Dios है. vive dentro de ti. खुदा आपके अंदर रहता है. El que te formó जिसने आपको बनाया है se te metió adentro. वो आपके अंदर आ गया है. El que te formó जिसने आपको बनाया है vive dentro de ti. वो आपके अंदर रहता है. El que creó a España जिसने स्पेन को बनाया o a है la India और जो इंडिया को y a todos los países और सारी दुनिया को, vive dentro de ti. वो आपके अंदर रहता है. En un segundo एक सेकंड के अंदर Él tiene poder उसके पास कुदरत है para liberar a tu pueblo. कि आपकी पूरी कौम को रहाई दे. En 2 segundos 2 सेकंड के अंदर tiene poder तो उसका कुदरत है para cambiar la cultura. उसका सारा कल्चर को बदल देने En की. 3 segundos 3 सेकंड के अंदर tiene poder उसके अंदर कुदरत है para transformar tu vida. आपकी जिंदगी बदलने की. Todo lo que hoy tú haces जो कुछ आज आप करते हैं que a Dios no le agrada, कि खुदा को अच्छा नहीं लगता, tú necesitas आप जानते हैं आपको क्या- decirle a Dios, और आप खुदा से कहें trae el cambio. मेरे अंदर चेंज लेके En आओ. el camino और जिस रास्ते पे he है perdido cosas, वो रास्ते में आप चीजें खो गए हैं, pero necesito मगर मैं चाहता हूँ recuperarlas. मैं वो दोबारा लेना चाहता हूँ. Este es el tiempo. ये वो वक्त है. La tierra clama जमीन मांग रही है la manifestación जो मैनिफेस्टेशन de है los hijos de Dios. खुदा के बेटों की. Este es un tiempo ये उसका वक्त que है todo lo oculto कि सारे चर्चेस sale a la luz. कि वो सारे जो लोग हैं वो रोशनी में जाएं. Todos los gobiernos, सारे गवर्नमेंट्स और toda la corrupción सारी करप्शन está saliendo a la luz. वो सारी रोशनी में आ जाए. Todos los ministros सब मिनिस्टर जो que हैं hicieron algo malo, कि जिन्होंने गलत किया है Dios se lo está sacando. खुदा उनको निकाल रहा है. Porque en este tiempo क्योंकि ये वक्त lo que está oculto जो कि हो रहा va है a salir a la luz. क्योंकि वो रोशनी Lo que में estaba oculto en Panamá जो कुछ ढकी हुई थी चीजें salió en la luz. वो सारा कुछ खोल के Lo que Francia tenía oculto जो कि फ्रांस ने ढकाया हुआ था sale a la luz. वो सब खुल गई हैं. Lo que España tiene oculto जो स्पेन ने ढकी हुई ya थी está saliendo a la luz. वो भी अब खुल गई हैं. Este es el tiempo ये वो वक्त है que se va a descubrir cosas. कि आप चीजें जानोगे. Este es el tiempo ये वो वक्त है que se van a descubrir cosas. कि आप लोग चीजों को जानेंगे. Este es el tiempo ये वो वक्त है que se van a descubrir cosas. कि आप वक्त चीजों को जानेंगे. Ya tu secreto आपके सीक्रेट्स será descubierto. वो लोग देख लेंगे. Pero hay algo para terminar. मगर एक चीज है जो खत्म करने से बेहतर है. Todo lo que está dentro de ti, जो कुछ आपके अंदर है que Dios ha metido जो खुदा ने डाला है dentro de tu vida, आपकी जिंदगी में será descubierto. वो देख खुलेगा. La gente le decía a Jesús, Rabí, यीशु को लोग कहते थे रबी, maestro. उस्ताद. Maestro significa grande. उस्ताद का मतलब है बड़ा, मास्टर, बड़ा. Y la gente comenzaron a